آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں مختصراً تبصرہ کروں گا۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ ان کے حقوق، ان کا جذبات اور احساسات کو انتہائی ظلم کے ساتھ پامال کیا جاتا تھا۔ عرب میں لوگ لڑکی کی پیدائش کو بدقسمتی سمجھتے تھے، اور جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ معاشرے سے اپنا منہ چھپا کر پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں فتیون نامی ایک یہودی رہتا تھا، اور اس کا یہ حکم تھا کہ مدینہ میں کسی بھی لڑکی کو شادی سے پہلے اس کے ساتھ رات گزارنی ہوگی، اور لوگ ڈر کے مارے اپنی پاک دمن بیٹیوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ عرب کے مختلف علاقوں میں شادی کا یہ بدترین رواج بھی موجود تھا کہ شادی سے پہلے کئی مرد ایک کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور جب لڑکی بچہ جنم دیتی تھی تو ان مردوں کو دوبارہ اس کے سامنے بلایا جاتا تھا، اور لڑکی جس کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ وہ اس کا بچہ ہے تو اسی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایک ایک آدمی جتنا چاہے شادی کر سکتا تھا۔ خاوند کے وفات کے بعد بیوی کو عدت کے طور پر کم تر لباس پہنا کر 1 سال تک گھر کے باہر کسی سنسان جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی حالت جوتیوں کی مانند تھی، مرد جب چاہے اسے بدل سکتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ بہت سے پتھر دل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جو زندہ بچ جاتی تھی، مردوں کی خدمت کرنا اور ان کے ناحق ظلم کو برداشت کرنا ان کے لیے مقدر بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ تکبیر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرب کا ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جسے سن کر ہر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مشرک تھا، ہمارے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک بدترین رواج موجود تھا، اور بچیوں کو مارنا ایک عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ جب وہ میری بات سننے اور جواب دینے کی عمر تک پہنچی تو جب بھی میں اسے پکارتا تھا وہ میری آواز سن کر میری طرف دوڑ کر چلی آتی تھی۔ ہر روز کی طرح ایک دن میں نے اسے پکارا اور وہ میری آواز سن کر بھاگتی ہوئی میری طرف چلی آئی۔ میں نے اسے ایک کنویں کے پاس لے جا کر اس معصوم بچی کو کنویں میں پھینک دیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میں اسے کنویں میں پھینک رہا تھا تو وہ ابا ابا کر کے چلا رہی تھی، لیکن اس ظالم نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا اور اپنی بچی کو اسی حالت میں زندہ دفن کر کے چلا آیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دردناک واقعہ کو سن کر غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس صحابی نے یہ واقعہ دوسری مرتبہ بیان کیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی پوری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم محسن انسانیت، حقوق نسوان اور عزت و آبرو کے محافظ، پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے دنیا کو ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم دی کہ فرمایا، اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کر کے اس کو بے عزتی نہ کرتا ہو اور اس کو اپنے بیٹوں پر ترجیح نہ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا تعلیم نہیں دے پایا۔ لیکن جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان عورتوں کو
जिनको जूतियों की मानिंद समझी जाती थी, जिनकी कोई हैसियत ना थी, जो मर्दों के सामने बोलने तक की ताकत नहीं रखते थे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौम के अहम मसाइल पर मशवरा देने का हक दिलाकर एक बेमिसाल नमूना कायम कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के दौरान अपनी अहलिया उम्म सलमा के मशवरा से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक अजीम मिसाल कायम फरमा दी है। औरतों के हकूक के बारे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिज हक़्क़ ज़ईफ़ैन अल यतीम वल मरअ, यानी ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैं दो कमजोर यानी यतीम और औरतों पर जुल्म करने पर पाबंदी लगाता हूं। इस्लाम ने हमें न सिर्फ आजाद औरतों का बल्कि लोंडियों का दर्जा भी बुलंद करने का तालीम दिया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी लोंडियों को अमती यानी मेरी लोंडिया कहने की बजाय फताई यानी मेरी बेटी कहकर पुकारा करें। लड़कियों की अच्छी तालीम और परवरिश की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने सिर्फ दो बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की, वो और मैं कयामत के दिन इस तरह मिलेंगे जैसे दो उंगलियां आपस में एक दूसरे से मिलती है। अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक की नसीहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, यानी तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे और मैं अपने घर वालों के साथ सलूक करने में तुम सबसे बेहतर हूं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के एहतराम का ऐसा आला मियार कायम किया है कि दुनिया की किसी भी तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलती कि अपनी बेटी फातिमा की इज्जत की खातिर भी उठकर खड़े हो जाते थे। घर की सारी जिम्मेदारियां औरतों के सुपुर्द कर दी। चूंकि अहले अरब इसके बिल्कुल आदी नहीं थे, इसलिए ये सब देखकर वो हैरान हो जाते थे, वो परेशान हो जाते थे और उनके लिए ये सब कुछ अपनाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़ाब्ता अखलाक के जरिए से खवातीन के एहतराम और हकूक की एक अजीम मिसाल कायम फरमा दी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन मैं किसी मामले में सोच रहा था। मेरी ये हालत देखकर मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर ये काम आप इस तरह करते तो शायद अच्छा होता। फौरन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम में इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मेरे काम में मशवरा दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम नहीं जानती कि अहले अरब ने कभी भी औरतों के इस हक को कबूल नहीं किया कि वो मर्दों के काम में मशवरा दे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये सुनकर मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर देख लो कि खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी उन्हें मशवरा देती है, उन्होंने तो कभी भी उनको नहीं रोका। तो फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? अहले अरब में यह भी रिवाज था कि अगर औरतों से कोई गलती सरजद हो जाती तो उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया कि औरतें अल्लाह की बंदियां हैं, तुम्हारी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरा बकरा की आयत नंबर 187 में फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी ऐ लोगो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिए उनका लिबास हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की इज्जत व तकरीम का ऐसा आला दर्जा कायम किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, यानी जन्नत माओं के कदमों तले है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन के जज्बात और एहसासात का भी बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा नमाज के दौरान प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो आपने जल्दी से नमाज खत्म की और फरमाया, मुझे लगा कि इसके रोने से इसकी माँ को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने जल्दी से नमाज खत्म की है ताकि बच्चे की माँ को कोई तकलीफ ना हो। एक बार मैदान जंग में किसी वजह से ऊंट और घोड़ों को काबू में न रखा जा सका। उस मौका पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए और बहुत सी औरतें भी गिर गई। ये देखकर एक सहाबी
जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाने आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे छोड़ो, पहले औरतों को उठाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके जो नसीहत फरमाई थी, उनमें से ये भी था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का आखिरी वसीयत कर रहा हूं कि औरतों के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मुसलमान खवातीन की इज्जत की हिफाजत की, बल्कि जंग में जाने से पहले अपने सहाबा को यह हुक्म फरमाया करते थे कि जंग में औरतों को कत्ल ना करना। सुभान अल्लाह, औरतों की इज्जत की हिफाजत का ऐसा खूबसूरत नमूना पेश किया है कि आज तक दुनिया में उसकी नजीर नहीं मिलती। कि मुसलमान खवातीन तो दूर की बात है, बल्कि दुश्मनों की खवातीन की भी तौहीन करना पसंद नहीं फरमाते थे। अरब के बाद इलाकों में यह भी रिवाज मौजूद था कि जब कोई शख्स फौत हो जाते थे, तो उसकी बीवी वारिस के तौर पर शुमार होती थी। चाहे तो उसका बड़ा बेटा शादी करके उसको अपने पास रख सकते थे, या फिर पैसा लेकर किसी दूसरी जगह शादी करवा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाकर अरब के इस घिनौना अमल को हराम करार देकर औरतों की इज्जत की हिफाजत की है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 22 और 23 में फरमाता है, वला तनकिहु मा अनकहा आबाउकुम मिनन निसा, नीज फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, यानी औरतों में से जिनके साथ तुम्हारे बाप दादों ने शादी की है, उनके साथ शादी मत करो, और तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां तुम पर हराम है। जिस दौर में अरब में औरतों को हकारत की निगाह से देखा जाता था और जिनकी बातों की कोई अहमियत नहीं थी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बातों को अहमियत देकर एक अजीम मिसाल कायम फरमा दी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मदीना में एक पागल औरत थी जिसका नाम उम्मे जाफर था। किसी जमाने में वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का खादमा भी थी। बाद में उसकी याददाश्त की ताकत कुछ कम हो गई। एक दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मुझे आपसे एक खास बात करनी है और मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि ए फलां की माँ, अगर तुम मुझे मदीना के किसी भी गली में बैठने को कहती हो, तो मैं वहीं पर बैठकर तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और तुम्हारा सारा काम भी कर दूंगा। बहरहाल वो औरत एक जगह जाकर बैठ गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ बैठ गए और तब तक वहां से नहीं उठे जब तक उसकी तमाम बातें सुनकर उसको खुश ना कर दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खवातीन के लिए इन तमाम खिदमात को देखकर मुसन्निफ के कलम की स्याही खत्म हो जाती है, लेकिन तारीफ खत्म नहीं होती। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन गुजर जाता है, लेकिन तारीफ करने वालों की तारीफ खत्म नहीं होती। मुसलमान तो मुसलमान, बल्कि मगरबी मुअर्रिखीन के कलम भी इस अजीम पैगंबर की तारीफ किए बगैर तारीख के औराक से नहीं उठी। उनमें से सिर्फ दो मुअर्रिखीन का जिक्र करता हूं। पी एयर कैरी वाइट अपनी किताब मोहम्मद एंड टीचिंग ऑफ कुरान के सफा नंबर 126 में लिखते हैं कि मोहम्मद 1300 years ago assured to the mothers, wives and daughters of Islam a rank and dignity not yet generally assured to women by the law of the West। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल पहले माओं, बीवियों और बेटियों को वो इज्जत अता की जो मगरबी ममालिक के कवानीन अभी तक अपनी औरतों को नहीं दे सका। जेम्स ए मैसेज अपनी किताब में लिखते हैं कि he lifted women from the bondage of in which desert custom held them। यानी उन्होंने औरतों को सहराई हालत से आजाद कर दिया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबकात निस्वान पर यह एहसान देखकर दिल से सिर्फ यही निकलता है कि भेज दरूद उस मुहसिन पर तू दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। अल्लाह ताला हम सबको औरतों से हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
تاکہ بر وقت اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ۔